شبیر کا کہنا ہے کہ بعض افراد اتنے ماہر اور چالاک ہوتے ہیں کہ کسی کی بھی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں۔ مڈھ رانجھا میں بھی شبیر نے ایک ایسے ہی کردار کو دیکھا ہے۔ یہ کردار کسی مرد کا نہیں، عورت کا تھا، جو ایک معمولی محنت کش الیکٹریشین کی بیوی اور 4 چھوٹے چھوٹے بیٹوں کی ماں تھی۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے دیکھا کہ جاوید نامی الیکٹریشین موٹر سائیکل پر ایک چھوٹا سا بیگ رکھے سفر کر رہا تھا۔ پھر اس کی موٹر سائیکل ایک گلی میں مڑی، جہاں اس نے ایک دروازے کے سامنے موٹر سائیکل کھڑی کر دی اور دروازے کی بیل بجا دی۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ یار تمہیں کل سے کہا ہوا ہے، اب آئے ہو تم؟ ارے چوہے صاحب میں گاؤں میں ہی نہیں تھا، جیسے ہی پتا چلا فوراً آ گیا۔ کمال ہے، اچھا آ جاؤ آپ۔ وہ دونوں گھر کی اندرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گئے۔ جاوید نے سولر پینل اور بیٹری وغیرہ کا معائنہ کیا اور پھر اپنا ٹول باکس کھول کر کام کرنے لگا۔ اچھا یہ بتا، اس کی بیٹری تو نیچے لگی ہوئی ہے نا؟ ہم کے نیچے کمرے میں۔ ایک منٹ، اس سے میں صحیح کر دوں۔ مسئلہ یہاں سے نہیں ہے، ہاں مسئلہ کچھ الگ ہی ہے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، نیچے آؤ، نیچے آؤ۔ ہاں چلو آ جاؤ۔ جاوید نے جلدی اپنا کام نمٹایا اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اتر کر لائٹ جلا کر بھی دکھا دی۔ یار جاوید، تمہارا گزارا ہو جاتا ہے اس مہنگائی میں؟ تمہارے سوا گاؤں میں کوئی اور الیکٹریشین تو نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے چوہے صاحب، ہو ہی جاتا ہے گزارا۔ آپ کو پتا ہے مہنگائی تو ہے ہی، اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے، اور میں ہی ایک الیکٹریشین ہوں بس۔ اچھا وہ آپ کے پاس ٹیسٹر وغیرہ ہے؟ اچھا رہنے دے، کوشش کرتا ہوں ایسے ہی ہو جائے۔ یہ ہو گیا۔ اب جب بھی آپ کی لائٹ جائے گی نا تو سولر پینل کے اوپر پورا کنورٹ کر دیا میں نے، اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ چلیں میں چلتا ہوں۔ جاوید 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا، لیکن تھا محنت کش۔ جاوید جتنا سادہ تھا، اس کی بیوی اتنی ہی تیز اور چالاک تھی اور اپنی ساس کو اپنے روب میں رکھتی تھی۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ جاوید کی ماں چولہے پر تھی کہ جاوید کی بیوی فون کان سے لگائے ہوئے کمرے سے نکلی اور ساس پر غصہ کرنے لگی۔ اما تم نے ابھی تک کھانا نہیں تیار کیا؟ تمہیں پتا میرا کزن آیا ہوا؟ کزن آیا ہوا؟ وہ کب آ گیا؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اب ہر بات تمہیں بتانے والی ہوتی ہے کیا؟ جاوید کی بیوی جانے کے لیے مڑنے لگی تو اس کا فون پھر کانوں سے لگا ہوا تھا۔ اس نے شوہر کے اچانک لوٹنے پر بھی کسی حیرانی کا اظہار نہیں کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ تو کیا ہر وقت فون پہ لگی رہتی ہے؟ شوہر آیا ہے دکھتا نہیں ہے کہ آدمی چائے پانی کا پوچھ لے؟ تیری ماں ہے نا، اس سے بات کر، وہ کر کے دے گی نا۔ میں ذرا مصروف ہوں۔ کس بات کی مصروف ہے؟ میرے کزن کا فون آیا، اس سے بات کر رہی ہوں، آئی سمجھ میں؟ ایک کزن سے تو فون پہ بات کر رہی ہے، ایک کزن تیرا گھر پر ہے۔ یہ وہ انصر وہی تیرا کزن ہے نا جیسے تو اپنا پرانا محلے دار کہتی تھی؟ کر لے بحث، کر لے بحث۔ کیا بگاڑا وہ تیرا ہے؟ کیا بگاڑا ہے وہ میرا دوست ہے، میرا کزن ہے، جا جا کرنا ہے کر لے۔ ادھر ادھر میرے خدا، اماں اس نے آج پھر نشہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس کا کزن جو آیا ہوا ہے نا وہی کرواتا ہے اسے نشے۔ آج چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ روک ادھر۔ اماں سمجھا اپنے بیٹے کو، پاگل ہو گیا یہ، پتہ نہیں کن کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ چھوڑ دو بیٹا جاوید، اس کے منہ نہ لگ۔ اماں اسے سمجھا دو، اس کا کوئی دوست کوئی کزن میرے گھر میں دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ ہاں نہیں آئے گا میرا کزن۔ ویسے بھی تم دونوں جو نا کسی سے ملنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ بڑا آیا کزن، یار بات تم چھوڑ، دماغ خراب کر رہا تھا۔ جاوید کی بیوی کھلے عام اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی، لیکن جاوید بچوں کی خاطر خون کا گھونٹ پی کر اسے برداشت کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے آشنا سے گھر کے بجائے باہر ملنے لگی تھی۔ شبیر نے دیکھا کہ جاوید کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ سیر و تفریح کر رہی تھی۔ پھر وہ ایک جگہ ٹہل ٹہل کر اس سے بات چیت کرتی دکھائی دی۔ ارے چھوڑ، جب میں نہیں ڈرتی تو تم کیوں ڈرتے؟ اچھا سن، بولو۔ میں ایک بہت بڑی الجھن میں ہوں۔
4 बच्चे हैं मेरे, महंगाई देख रहे हो तो अगर मैं जावेद से तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम संजीदा हो तो मैं तो कर लूंगा शादी। वैसे ये ताल्लुकात तुम्हें बुरे लग रहे हैं क्या? नहीं तो फिर जैसा चलना है चलने दो। मेरा जी करता है कि जावेद को दुबई का वीजा लगवा के हमेशा के लिए वहीं भेज दूं ताकि मेरी जान छूट जाए। हमेशा के लिए उसको दुबई भेजने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ और मैं जावेद को फोन करके उसको यहाँ बुलवा लूंगी, उसके साथ घर चली जाऊँ। वो पूछेगा नहीं तुम्हें तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें क्या करना है कि वो मुझसे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, वो मेरा मामला है। जाओ। जावेद की बीवी का आशना मोटरसाइकिल लेकर चला गया। वो उसे दूर तक जाता देखती रही, जिसके बाद उसने अपने शौहर को फोन कर दिया। अच्छा सुनो, ये पेट्रोल पंप की पीछे वाली गली है ना, मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। अरे आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ। क्या हो गया, क्यों खड़ी हो, क्या मसला है? सारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ मैं, जल्दी आओ। अरे हाँ बोला ना, आता हूँ। हर कोई बाप बना हुआ है, वो बाप बन रहे हैं और ये भी बाप बन रहे हैं। थोड़ी देर में जावेद नहर किनारे पहुंचा तो वो मुंडेर पर बैठी हुई दिखाई दी। अब वो दोनों खामोशी से घर की तरफ जा रहे थे। बीवी घर में दाखिल होते ही अपने कमरे में बंद हो गई और जावेद की माँ, जो ये सब कुछ देख रही थी, खामोश रही और अपने बेटे को खामोश रहने का इशारा करने लगी। जावेद की बीवी ने शादी के बाद अंसर से ताल्लुकात उस वक्त पैदा किए थे जब वो एक बस अड्डे पर अपनी मां के साथ घर जा रही थी। अंसर उसे बस अड्डे पर मिला था और जावेद की बीवी ने उससे फौरी तौर पर दोस्ती गाड़ ली थी और अब उसे दीदा दिलेरी के साथ खुल्लम खुल्ला मिल रही थी। शौहर ने जब्त की इंतहा कर दी थी, लेकिन अब जावेद की बीवी को अंदाजा हो गया था कि अब उसका शौहर उसकी जान भी ले सकता है। शब्बीर ने देखा कि जावेद की बीवी अपने आशना से फोन पर बात कर रही थी। वो उसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर रही थी। फिर उसकी हरकत और सकनात से लगा कि जैसे वो अपने शौहर को रास्ते से हटाना चाहती हो। तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। जावेद की बीवी ने एक दिन अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर का गला दबा दिया था और लाश ठिकाने लगाकर मामूल की जिंदगी गुजार रही थी। इधर मकतूल की मां ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके नतीजे में बिला आखिर शौहर की कातिल बीवी और उसका आशना पकड़ा गया। ये खूबसूरत और पुरसुकून सा इलाका जो आप देख रहे हैं, मकतूल यहीं रहता था, यहीं मेहनत मजदूरी करता था। उसके कत्ल के बाद उसकी बूढ़ी माँ, रिश्तेदार और बच्चे मुसलसल एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। वायरिंग वगैरह पखियां दा, इस्त्रियां दा वो काम करदा ही माड़ा मोटा। ये ओदा रोजगार ही आई बच्चों का, बुढ़ड़ी माँ वास्ते इन्हां वास्ते जड़ा 200-400 लै हुंदा ही खा पांदे हन। और ओदा कोई इंदा और कारोबार कोई ना ही, ये इलेक्ट्रीशियन नहीं थोड़ा बड़ा जड़ा ये करता है। तेरा मेरा काम करता, मेहनत करता, उन खर्चा देंदा। उस बड़ी ज्यादती कीती है जवेद नाल, बड़ा जुल्म कीता है। जिवें जवेद नु मारिया सिंजे सन बोई हुई ओ चाहती है। ये साडी अपील है, हुकूमत तक भी अपील है कि उस ते तरस करन, जवेद इस बूढ़ी ते तरस करन, ठीक है, उसकी रिहाई न करन, उन फांसी। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो कुछ यूं है। मुख्तलिफ नंबर की सीढ़ियाँ लेने पे हमें मालूम हुआ कि इसकी वाइफ सबा बीबी का इस वकील में इस्तेमाल होना पाया गया, जिसको हमने सामने तफ्तीश किया, जिसने इस बात का इंकशाफ किया कि मैंने अपने आशिक अंसर कलियार के साथ मिलकर 16 मार्च 2023 को बवक़्त 4-5 बजे शाम बादला के इलाके में हमने उसे गला दबाकर मार दिया। बाप कत्ल हो चुका है और चारों छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी के रहमो करम पर हैं। ये बच्चे भी मेहनत मजदूरी करते और जलाने के लिए भारी भारी लकड़ियां हाथों में उठाए घर लौटते दिखाई दे रहे हैं। शब्बीर ने मडरांझा में पेश आने वाले इस सफाक और अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और अपील की है कि मकतूल के बच्चों की कफालत का कोई न कोई बंदोबस्त जरूर किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो ख्वाब देखते हैं और उनकी ताबीर पाकर ही दम लेते हैं। तदबीर पर भरोसा करने वाले कभी कभी तकदीर से हार भी जाते हैं, लेकिन वो मायूस नहीं होते। मैं हूं पारस मसरूर और आज मैं आपको दिखा रहा हूं एक ऐसे ही शख्स की कहानी। रिहाड़ी के इलाके अजीमाबाद के रिहायशी जमील को शब्बीर ने देखा तो वो एक वेल्डिंग की दुकान में काम कर रहा था। आग का तेज शोला लोहे को पिघला रहा था और जमील महारत से काम में मसरूफ था। काम खत्म करके उसने अंदर जाकर कपड़े तब्दील किए और फिर हाथ पांव धोकर बाहर आ गया, जहां दुकान का मालिक बैठा हुआ था। अच्छा, हाँ भाई सेठ, आपको तो पता है अब फसल की कटाई शुरू हो गई है, तो बस आज मेरे काम का आखिरी दिन था, तो अब मैं इसके बाद दुकान पे नहीं आऊँ। हाँ ये बात तो है। अच्छा सुना है आपके जो है गंदम की कटाई बहुत अच्छी हुई है। अरे सेठ, गंदम की कटाई अच्छी हो, कम हो या ज्यादा हो, इससे गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जमींदार लोग भाई इतना ही देते हैं कि हम गरीबों का गुजारा हो जाए। हाँ ये जमींदार बहुत जालिम होते हैं। अच्छा बरन मैंने तुम्हारा हिसाब किताब करके रखा हुआ है, आप जो है पैसे ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ, अल्लाह आपको खुश रखे। जमील चला गया तो सेठ अपने एक साथी से जमील की खूबियां बयान करने लगा। बेचारा यहाँ अलग मेहनत करता है, वहाँ खेतों में अलग मेहनत करता है। देखा है मैंने भाभी इसको। लोहा मजदूर बहुत सख्त जान और मेहनती था। गंदम की फसल तैयार हुई तो खेत में भी मेहनत मजदूरी करता था। छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे प्यार करता था और अपनी बीवी का ख्याल रखता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जमील का एक छोटा बच्चा हाथ में एक प्लास्टिक का गुड्डा लिए हुए था। गुड्डे की टांग टूटी हुई थी और उससे वो जुड़ नहीं रही थी। अभी देखना, मैं इसको ऐसा जोड़ दूंगा, देखना भागने लग जाएगा। जमील अपने बच्चे को दौड़ कर दिखा रहा था। इस दौरान उसकी बीवी ने उसे आवाज दी। तो कहाँ खिलौनों में लगा हुआ है? जाके ना जमींदार को बोल दो कि आज मैं काम पे नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दवाई वगैरह ली? हाँ वो गोली मैं खा लूंगी, मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ। जमील उस जम्बू को घर से निकलकर खेतों की तरफ जाते और वहाँ मजदूरी करते देखा गया। फिर वो थक हार कर एक पलंग पर बैठा हुआ दिखाई दिया। अबे जमील क्या हाल है, थक गया क्या भाई? अरे नहीं सेठ, हम जैसे मजदूर लोग कहाँ थकते हैं। बस अभी आया हूँ, हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, मैंने सोचा थोड़ी ठंडी हवा खा लूं, बस। तो सुना पैर में चोट वोट लग गई थी? नहीं सेठ, वो असल में दाना हुआ था ये, अब उसका निशान है। हाँ। शाम को जाएगा, जाते हुए खाक लेता हुआ जाना अपने। अरे सेठ बहुत बहुत मेहरबानी सेठ, बस तुम साग देते हो, बच्चे खाते हैं और दुआ देते हैं तुम। उस रोज जमील को घर लौटने में देर हो गई थी और उसकी बीवी इंतजार कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि जमील की बीवी चौखट पर खड़ी अपने शौहर की वापसी का रास्ता देख रही थी कि एक लड़का उसके पास दौड़ता हुआ आया। वो खासा घबराया हुआ था। जमील भाई का पाउंडर मशीन में आ गया। अल्लाह खैर करे, कहाँ है तेरे भाई? जमींदार उनको अस्पताल लेके गया। चल जल्दी चल, तुम लोग अपना ख्याल रखो। वो मेहनतकश जिसे अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा था, आज तकदीर के हवाले था। डॉक्टरों ने उसकी एक टांग काट दी थी, साल भर वो अस्पताल में रहा। उसके बच्चे फाकों से मरने लगे तो बीवी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। शब्बीर ने देखा कि शदीद गर्मी में जमील की बीवी तंदूर पर रोटियां लगा रही थी और गांव के लोग रोटियां खरीद रहे थे। जमील के 2 छोटे बच्चे भी अपनी मां की मदद कर रहे थे। इसी दौरान शब्बीर ने देखा जमील उस जम्बू एक बांस के सहारे लंगड़ाता हुआ तंदूर के पास पहुंच गया। अरे डॉक्टर ने मना किया है, तुम चल रहे हो, जाके बैठो एक तरफ। अरे खैर खैर, अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि वो आरी पड़ी थी ना अपने घर में, वो कहाँ है? अरे क्या करना है उसका? चल फिर मेरे साथ आजा। रुको भाई, मैं भी आ रही हूँ, सब्र करो, चलो। जमील की बीवी तंदूर से उठकर अपने शौहर को सहारा देते हुए दालान में ले गई, जहां वो एहतियात से जमीन पर बैठ गया। मैंने कुछ सोचा है, वो सुन के ना तू खुश हो जाएगी। क्या सोचा है? मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह ना मसनूई टांग का बंदोबस्त कर लो। ये क्या होता है? यार जैसे हमारी इंसानी टांग होती है, इसी तरह लकड़ी की टांग बन जाएगी।
लेकिन वो तो बहुत महंगी आएगी। तू एक काम कर, मेरे कुछ बुंदे और अंगूठियां जो पड़ी है ना, वो तो जाके ना बेच दे, कुछ पैसे ही आ जाएंगे, उससे खरीद ले जाके। नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा ना। जाहिर है वो सोना जेवर जो भी कुछ है तेरे माँ बाप ने बड़ी खुशी से तुझे बना के दिया है, भला वो कोई बेचूंगा मैं, और फिर मैं तुझसे आरी का पूछ रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश तो यही करूंगा ना कि वो मसनूई टांग मैं खुद बनाऊं। बस तू मुझे ये बता दे आरी कहाँ है, मैं खुद ही कोशिश करके खुद ही बनाऊं। बिहाड़ी के इस बाहिम्मत गरीब मजदूर ने मसनूई टांग के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि खुद अपनी टांग बनाई और कामयाबी से चलने फिरने भी लगा। ये है जमील। आप इस बाहिम्मत इंसान को देख सकते हैं। माजूरी के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और अब भी उसी मेहनत और लगन से काम करता है। बचपन तो मैं काम सीखे होया सी, इस वजह तो मैं थोड़ा बहुत काम आउंदा सी, मेरी लत्त आ गई सी, कट्टी गई सी, मसलन किसी मसले दे विच आ गई सी, हादसा हो गया सी मेरे नाल। ते उस तो बाद मैं यानी कि समोसे पकौड़े का भी काम किया वा, छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा मेहनत भी की है, शुरू तो मेहनत की है। मेरी बीवी सी, मेरी बीवी ने नाल मेरे मेहनत की है, तंदूर चलाया, ऐसी रोटियां पकाइयां, होटल बनाया, फिर समोसा पकौड़ा लाया, फिर उस तो बाद मैं यानी कि अपना काम करना वा, रोजी दिहाड़ी करना वा, तो दिहाड़ी करके अपने बच्चे पालना वा। अपने पांव पर खड़ा होने के लिए जमील जो कुछ कर सकता था उसने किया, लेकिन वो कोई हार्डवेयर इंजीनियर तो था नहीं कि उसकी बनाई हुई टांग ज्यादा देर तक उसका साथ देती। जमील ने शब्बीर को बताया कि अब वो तकदीर के आगे बेबस हो गया है, उसकी बनाई हुई टांग उसके ज्यादा काम नहीं आ सकती। उसने खुद को जख्मी भी कर रखा था और बाजार में मसनूई टांग की कीमत 4 लाख रुपए है। जमील की गुफ्तगू एक बार फिर सुन लीजिए। 3 मेरे बच्चे आ, 1 मेरी बेटी आ, 2 मेरे बेटे आ, ते मेरे घर च होर कमाने वाला कोई नहीं हैगा। ते मेरे यानी कि ना पंजाब हुकूमत नाल मेरी यही अपील है कि मेरी यानी कि मैं लत लवा लवा, बस ये जो कि मेरे को पैसे कोई नहीं है, बाकी मैं अपनी मेहनत करके अपनी रोजी कमाना वा, खाना वा, अपने बच्चे पालना वा। जमील जहां काम करता है वहां उसके एक साथी ने भी जमील की हिम्मत को सराहा और बताया कि मसनूई टांग जमील के लिए कितनी जरूरी है। ते अपनी मेहनत करके आप खांदा है गया, बेचारे मजदूरी है, बड़े अरसे तो मजदूरी है। ये घूमते पंजाब से मैं अपील करता हूँ कि ये तावन किया जाए, इन्हों इमदाद मुखर्जर हजरात ये तावन करन। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जमील ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। वो अभी तक अपनी ही बनाई हुई लकड़ी की टांग के सहारे चल फिर रहा है और मेहनत मजदूरी कर रहा है, जबकि उसकी बीवी भी तंदूर पर रोटियां लगाकर बच्चों का रिस्क कमा रही है। शब्बीर ने जमील के अज़्म हौसले की तारीफ की है और मुखय्यर हजरात और सरकारी जिम्मेदारों से अपील की है कि जमील जैसे मेहनत कशों की माजूरी की मुश्किलात कम की जाएं और जमील के अलावा भी मुल्क भर में पाए जाने वाले माजूरों को मसनूई अज़ा की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने उकाड़ा में एक ऐसे बाहिम्मत और बासलाहियत नौजवान को देखा है जिसे अभी हाल ही में इंजीनियरिंग की डिग्री मिली थी। इस डिग्री का हुसूल मोहम्मद ज़ीशान के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक हादसे ने उसके दोनों हाथ छीन लिए थे। फिर ये सब कुछ कैसे हुआ, सुनिए शब्बीर की ज़बानी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा मोहम्मद ज़ीशान का है। ज़ीशान की कहानी बहुत दुख भरी है, लेकिन अब ये सब कुछ माजी का हिस्सा है। ये नौजवान जिसे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते देख रहे हैं, 9 बरस की उम्र में एक हादसे का शिकार हो गया था। हुआ ये था कि छत पर अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलते हुए उसका हाथ हाई टेंशन लाइन की जद में आ गया था। ज़ीशान की जान तो बच गई थी, लेकिन उसके दोनों हाथों को काटना पड़ा था। जरा खुद ही सोचिए कि 9 साला प्यारे से बच्चे के हाथ कट जाएं तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। ज़ीशान के वालिद वापडा में मुलाजिम थे, अपने बच्चे के इलाज के लिए दौड़ धूप करते रहे और फिर खुशकिस्मती से शालामार अस्पताल लाहौर में चैरिटी हाउस से राब्ता हुआ और फिर ज़ीशान को इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके 2 मसनूई हाथ लगा दिए जो बिल्कुल असली हाथों की तरह काम करते हैं। ये मसनूई हाथ आप देख सकते हैं जिससे ज़ीशान हर काम खुद कर लेता है।
इन मसनूई हाथों ने ज़ीशान की जिंदगी ही बदल कर रख दी। अमेरिका से मसनूई हाथ लगवाने के बाद जब ज़ीशान पाकिस्तान वापस आया तो उसने तालीमी मैदान में गैर मामूली जहानत और मेहनत का मुजाहरा किया और फिर अब कुछ अरसे पहले उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिल गई। ज़ीशान ने इन्हीं मसनूई हाथों से काम लेते हुए मोबाइल से कंट्रोल की जाने वाली एक कार भी बना डाली, बल्कि सिर्फ आवाज के जरिए भी कार को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो एक छोटी सी नन्ही मुन्नी कार फर्श पे चल रही है, दरअसल ज़ीशान को खराज तहसीन पेश कर रही है और शायद कह रही है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। ज़ीशान ने माजूरी से मायूस होने के बजाय उसे अपनी ताकत में तब्दील कर दिया। ये देखिए ज़ीशान अपनी सलाहियतों का किस तरह मुजाहरा कर रहा है। अपने मसनूई हाथों और पाँव की उंगलियों से कंप्यूटर गेमिंग और ड्राइविंग की जबान लिख रहा है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, स्ट्रगल करनी पड़ी, लोगों की बातें सुननी पड़ी, बट अल्लाह के शुक्र से मेरे हौसले बुलंद थे। मुझे डर नहीं था किसी चीज़ का और मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह पाक ने एक सूझबूझ दी हुई थी और मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। एंड नाउ आई हैव डन माई बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड मैं अब लाहौर वर्किंग कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बट अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। मोहम्मद ज़ीशान ने अपनी माजूरी को शिकस्त दे दी है, लेकिन कुछ लोगों के रवैये से मायूस भी है। उसे माजूरी की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया गया, जबकि वो पूरी तरह ड्राइविंग सीख चुका है। शब्बीर ने ज़ीशान को अपने घर में काम काज करते, चलते फिरते, मसनूई हाथों से दरवाजा खोलते और मेहमानों को खुशामदीद कहते देखा है, लेकिन कहीं से ये नहीं लगता कि ज़ीशान किसी माजूरी का शिकार है। और हकीकत भी यही है कि जो काम हकीकी हाथ कर सकते हैं, इस तरह का काम ये मसनूई हाथ भी कर लेते हैं और शायद बहुत अच्छी तरह से। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़ीशान, जो अपनी जिंदगी और जिद्दोजहद के बारे में बता रहे हैं। मैंने ना लाइफ में बड़े से स्टूडेंट बच्चे भी देखे हैं, लोग भी देखे हैं जो इस डिसेबिलिटी के बाद जो है ना वो पढ़ाई छोड़ जाते हैं और लोगों से बातचीत करना छोड़ जाते हैं और वो सिर्फ पिसते ही रहते हैं लोगों की बातों में। अगर लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू नीड एनी गाइडलाइंस मुझे वो कहीं भी अप्रोच कर सकते हैं। मेरा लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक कहीं भी अप्रोच करके मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं कि मैंने लाइफ में अपनी स्ट्रगल कैसे की है, लोगों को कैसे फेस किया है। ज़ीशान के वालिद अब खुश हैं कि उनके बेटे ने माजूरी को शिकस्त दे दी है। पंजाब कॉलेज से ICS किया, उसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री जो है ना वो उसने हासिल की। मुश्किलें तो आती हैं कि जिस वक्त बच्चे को कपड़े भी पहनाने होते हैं, बच्चे को जेब खर्च देना होता था तो वो बच्चा जेब आगे कर देता था टेढ़ा होके कि पापा इसमें डाल दो। वो उस वक्त दिल भी दुखता था कि बच्चे को बाल किसके हाथ, एक ही हाथ होता, चलो कम से कम ये बच्चा अपना कोई ना कोई काम कर लेता। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस ज़ात का कि इस हालत में होकर भी बच्चे ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ मैं ਉਹਦੇ ਤੇ फख्र करती हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात से बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने उन्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है। शब्बीर का कहना है कि ज़ीशान खास तौर पर माजूर अफराद के लिए एक रोल मॉडल हैं, जिनका पैगाम है कि इंसान को हर हाल में जिंदगी से लड़ना चाहिए और माजूरी को शिकस्त देनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। किस्मत क्या होती है, बदकिस्मती क्या होती है, इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी मर्जी जिसे जैसा चाहे रखे। शब्बीर ने शुजाबाद में एक ऐसे ही खानदान को देखा है जो एक दूसरे का सहारा तो हैं, लेकिन खुदा के सिवा उनका कोई सहारा नहीं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। फुटेज में नजर आने वाले लोग बस्ती मोची पूरा के रिहायशी हैं। ये सब आपस में बहन भाई हैं, 3 भाई और 3 बहनें। ये सब 6 के 6 भाई बहन माजूर हैं और पैदाइशी माजूर हैं। मोहम्मद सुल्तान जो इस घर का सरबराह है, उसका ही दिल जानता है कि वो अपने माजूर बच्चों को देखता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। 17-18 बरस पहले सुल्तान की शादी अपनी ही एक कजन से हुई थी। सुल्तान एक भट्टा मजदूर है। शादी पर वो बहुत खुश था कि आगे चलकर वो साहिब औलाद होगा तो उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, लेकिन ये सारे ख्वाब एक एक करके चकनाचूर होते चले गए। सुल्तान के यहाँ 3 बेटे और 3 बेटियां हुई
اور یہ سب بچے معذور ہی پیدا ہوئے۔ غریب بھٹا مزدور سلطان نے خدا کی مرضی پر صبر کیا اور بچوں کو پالنے اور ان کے علاج معالجے کے لیے پہلے سے بڑھ کر محنت کرنا شروع کر دی۔ بچوں کو تعلیم دلانے کا بھی خیال آیا، لیکن انتہائی قلیل آمدنی میں پیٹ بھر کر کھانا ملنا ہی ایک خواب تھا، تو بچوں کو تعلیم کیسے دلائی جاتی؟ سلطان کے آنگن میں طلوع ہونے والا دن پہلے سے زیادہ مایوس اور دکھ کے سائے پھیلا کر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ سب لوگ جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح معذوروں والی گاڑیوں پر ادھر ادھر آنے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چھٹ ٹپکتا چھوٹا سا ایک کمرے کا مکان اس کے مکینوں کے لیے آسرا تو ہے، لیکن اس کا کرایہ ادا کرنا بھی ایک اکیلے غریب باپ کے لیے آسان نہیں۔ سلطان کی بیٹیاں اور بیٹے سارا دن آنگن اور صحن میں گزارتے ہیں۔ سلطان کے بچوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بیماری لا علاج نہیں ہے، اس کے لیے پہلے ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ کزن میرج میں نے دیکھا ہے کہ اب میرے آؤٹ ڈور میں پیدائشی معذور بچے اور ایک ہی خاندان کے 6 بچے تک میں نے دیکھے ہیں جو پیدائشی معذور ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور میں نے ہسٹری لی تو پتا چلا کہ یہ دونوں ماں باپ جو ہیں وہ فرسٹ کزنز ہیں۔ تو فیملی میں دیکھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کے خاندان میں تھیلیسیمیا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں یا پیدائشی معذور سیریبرل پالسی سے بچے آ رہے ہیں، مسل ڈسٹرافی کے بچے آ رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس خاندان میں فرسٹ کزن میرج جو ہے اسے اوائڈ کریں خاص طور پہ۔ اور اگر بہت ضروری ہے کزن میرج خاندان میں ہوتا ہے تو پھر جینیٹک ٹائپنگ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، بلڈ میں کروموسومز کے اور جینز کے ٹیسٹ ہیں جو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ مدر اور فادر ہیں ان کے جینز میں کسی قسم کی موروثی بیماری کی علامات ہیں یا نہیں۔ شبیر نے سلطان کے بچوں کے علاج اور ان کی تعلیم و رہائش کے لیے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں صرف اپنے بارے میں ہی نہیں سوچنا چاہیے بلکہ دوسروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ کزن سے شادی ہوئی ہے، 6 بچے ہیں، 6 کے 6 کی معذور ہیں۔ میں نے ان کا بہت علاج کروایا اور بہت جو کوشش ہوئی میرے سے میں نے پوری کری۔ میری حکومت سے اپیل ہے میری مالی مدد کی جائے تاکہ میں بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں اور اچھا کھانا پینا ان کو دے سکوں۔ ہم 6 بھائی بہن ہیں، وہ پیدائشی معذور ہیں۔ ابو اس لیے پڑھا نہیں سکے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ ہماری مالی مدد کی جائے۔ دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ جب زمینیں تقسیم ہوتی ہیں، جب نئی سرحدوں کی نئی لکیریں ابھرنے لگتی ہیں تو سورج بھی حسب معمول نکلتا ہے اور چمکتا ہے، اور چاند ستارے بھی اپنی چمک دمک سے محروم نہیں ہوتے۔ البتہ انسان تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اجنبی۔ کچھ ایسا ہی ہوا اس وقت جب پاکستان کا ایک حصہ ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا اور قاری عبدالکبیر جو کبھی پاکستانی تھے بنگلہ دیشی ہو گئے۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر ابھی جن قاری صاحب کا ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے جو ایک چھوٹی سی مسجد میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ قاری عبدالکبیر کو بنگلہ دیشی کہا جائے یا پاکستانی یہ شبیر نہیں جانتا۔ اس کو تو صرف اتنا پتا ہے کہ وہ 40 سال پہلے روزگار کی تلاش میں پاکستان آئے تھے اور پھر یہیں کے ہو رہے ہیں۔ قاری عبدالکبیر کی کہانی نہایت ہی دردناک ہے۔ جب وہ 40 برس پہلے روزگار کی تلاش میں آئے تو ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ روزگار کی تلاش میں پھرتے پھراتے قاری عبدالکبیر سرائے مغل کے نواحی علاقے شخین پہنچ گئے اور ایک مسجد میں امامت کرنے لگے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر چاروں طرف سے یلغار ہونے لگتی ہے۔ ایک تو اجنبی شہر، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، روزگار کا بھی کوئی آسرا نہیں، لے دے کر ایک اللہ کا گھر بچا تھا جس کا رخ کیا گیا، یہ سوچ کر کہ یہ مسجد ہے وہ اور ان کے کاغذات کا تھیلا محفوظ رہے گا، اطمینان سے امامت کرنے لگے۔ اسی دوران کسی نے ان کا سفری تھیلا چرا لیا، جس کے بعد ان کی شناخت ہی ختم ہو گئی اور جو تھوڑے بہت پیسے تھے ان کے پاس وہ بھی چرا لیے گئے۔ قاری عبدالکبیر کے پاس اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ خود کو تقدیر کے حوالے کر دیتے۔ مسجد والوں نے نیک اور شریف آدمی سمجھ کر انہیں امامت پر ملازمت رکھ لیا اور مسجد میں سونے کی اجازت بھی دے دی۔ قاری عبدالکبیر کو اپنی بیوی بچوں سے بچھڑے 40 برس ہو چکے تھے۔ ایک دن محلے کے ایک نوجوان نے نماز کے بعد قاری عبدالکبیر سے ان کی کہانی سننے پر اصرار کیا اور پھر اس ویڈیو کو وائرل بھی کر دیا۔
वीडियो का वायरल होना था कि कारी अब्दुल कबीर की 40 साला बेटी ने अपने बाप को पहचान लिया और जब उसे पता चला कि उसके बूढ़े बाप के पास सफरी शनाख्त तक नहीं है तो वो मायूस हो गई कि बाप के जिंदा होते हुए वो शायद ही कभी उससे मिल सके। बेटी तो आखिर बेटी होती है, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपील की कि उसके बाप को किसी तरह बांग्लादेश भेजा जाए। शब्बीर ने जब कारी अब्दुल कबीर को देखा तो वो एक शदीद उदास इंसान लगे। जाहिर है जिसकी कोई शनाख्त न हो, जो अपने बीवी बच्चों से बिछड़ा हुआ हो, वो इंसान मुस्कुरा भी दे तो बहुत बड़ी बात है। बंगाल से गुर्बत की वजह से मगरबी पाकिस्तान पहुंचा था। 40 साल के बाद मेरे पास ना कागज था, न पैसे, जो कुछ था सब कुछ गुम हो गया। लिहाजा मैं आला हुकाम से आरुज करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आज इतना दरखास्त है कि बड़ा मेहरबानी हमें ঢাকা में पहुंचाया जाए। এখন আমার বাবাকে আমরা বাংলাদেশে আনতে চাই, আমার বাবাকে আমরা দেখতে চাই। আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ, আমার বাবাকে আপনারা দেশে ফিরাইয়ে দেন। कारी अब्दुल कबीर ने शब्बीर को बताया था कि पाकिस्तान आने से पहले वो बांग्लादेश में किसी के पास खेती बाड़ी करते थे और बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। कारी अब्दुल कबीर को जो 200-250 रुपए मस्जिद से मिलते थे अब वो भी नहीं मिलते। महल्ले पड़ोस के लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने पीने को दे जाते हैं। शब्बीर ने इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों से अपील की है कि कारी अब्दुल कबीर को उनके अहले खाना से मिलाने में उनकी मदद करें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।